Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video, the best of CAT LRI practice series, right? Let's start with today's set and our Snap batch, Snap and NMAT 24 basic to advanced batches beginning from the 21st of July. So if you want to enroll for this batch or you want to get more details, you can find all the links related to it in the description, right? So you can definitely check that out. Now, let's start with today's set, and this is a wonderful set. And on the basis of difficulty, I would classify this under difficult category. Right? Let's first read this. Let's try to understand this. And as always, pause this video right here itself, try this set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's read what it is saying. 10 objects O1, O2 से लेके O10 were distributed among Amar, Bharat, Charles, Disha, Elise. Each item went to exactly one person. Each person got exactly two of the items, and this pair of objects is called his or her bundle. Now, this clarifies the fact कि हर person को out of these 10 objects दो object मिलेंगे and कोई एक object भी किसी एक ही person को मिल सकता है. So हर person को दो दो मिलता जाएगा. So that accounts for these 10 objects. Straightforward. And also it said the pair of objects with a person is called his or her bundle. So हर person के पास दो objects होंगे, उन दोनों का pair जो होगा that is actually called the bundle. The following table shows how each person values each object. तो अमर O1 को 4 पॉइंट से वैल्यू करता है, अमर O2 को 9 वैल्यू करता है, अमर O3 का 9 वैल्यू देता है. ऑन द सेम हैंड जैसे भरत का O1 को 5 वैल्यू देता है, राइट. भरत का O2 को 9 वैल्यू देता है, भारत को O3 को 7 वैल्यू देता है, एंड सो ऑन, राइट. सो दीज आर द वैल्यूज given by each of these 5% to each of the 10 objects. Then the value of any bundle by a person is the sum of that person's values of the objects in that bundle. तो मान लो कोई भी बंडल का अगर कोई पर्सन वैल्यूएशन करता है, तो क्या होगा, जो वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू देता है उनका सम. तो फॉर एग्जांपल मान लो बैरेट, राइट. बैरेट O6 एंड O7 का मान लो कोई बंडल है, राइट. अज्यूम करते हैं बैरेट O6 एंड O7 के बंडल को क्या वैल्यू करेगा, 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. तो 3 एंड 6 मतलब ओवरऑल जो एडिशन होगा दैट इज 3 and 6, that is 9. 9 is the overall value of the bundle O6 and O7 as given by Barrett. But वहीं पे O6 and O7 का अगर चार्ल्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू देखोगे तो इट वुड बी 4 + 5, दैट इज 9. दिशा के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो 3 + 6 9. एलिस के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो 5 + 6, दैट इज 11 हो जाएगा आपकी बात, राइट. सो सेम लाइक बंडल का प्राइस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. Then, this is very important. A person X envies another person Y if X values Y's bundle more than X's own bundle. So, example पढ़ते हैं. For example, hypothetically, suppose Amar's bundle consists of O1 and O2. So, suppose करते हैं Amar का bundle O1 and O2 है, right? And Barrett's bundle consists of O3 and O4. So, Barrett का क्या है, O3 and O4. Suppose इसका 7 है और इसका क्या है, 5. Now, then Amar values his own bundle at 4 + 9, that is 13. Perfect, fine. Amar का खुद का valuation कितना होगा, 13. And Barrett's bundle at 9 + 3 = 12. तो अमर जो Barrett के bundle that is O3 and O4 का valuation करेगा वो 9 + 3 क्या करेगा, 12. तो खुद का valuation उसने 13 करा और Barrett के bundle का उसने valuation क्या करा, 12 करा. So in that case because उसका खुद का जो valuation है उसके bundle का वो ज्यादा है, यहाँ 13 है, और Barrett के bundle का जो उसने valuation करा कितना था, 12 था. 13 is greater than 12. So in that case इसने clear लिखा होगा, hence Amar does not envy Barrett. On the other hand, Barrett values his own bundle at 7 + 5. तो Barrett के आप corresponding देखोगे तो वो खुद का bundle 7 + 5 12 से वैल्यू कर रहा है. बट ऑन द सेम हैंड अगर आप Barrett का वैल्यूएशन देखो कि किसके बंडल का, अमर के बंडल का. सो Barrett अमर के बंडल दैट इज O1 and O2 के वैल्यूएशन क्या कर रहा है, 5 + 9 दैट इज 14. इन दैट केस 14 से ये नंबर क्या है, छोटा है ना, उसका खुद का वैल्यूएशन हमारा छोटा है. सो इन दैट केस वी कैन से कि Barrett would envy Amar. Now, this part should be perfectly clear because ये हमारा सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है. How a person envies the other person. Then we have these following facts and about the actual distribution of the objects among the 5 people. Let's start solving this.
चलो फिर एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं. सो वी ऑलरेडी नो द एनवी वाला पार्ट. लेट्स रीड ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. The following points are known about the actual distribution of the objects among the five people. First point, if someone's value for an object is 10, then she or he received that object. तो किसी ने भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर 10 कर रखा है, so he or she will receive that value, right? Will receive that object. तो 10 तो मैं कहाँ दिख रहा है इस पूरे सिनेरियो में? बैरेट में एक 10 दिख रहा है, so हम बोल सकते हैं कि बैरेट वुड गेट दिस O9. राइट. अब एक काम आप ये भी करो, जैसे जब भी आपको ये कोई ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल भारत ने O9 पिक कर रखा है, ठीक है, भारत को O9 मिला हुआ है, तो O9 किसी और को तो नहीं मिलेगा. सो हम एक काम कर सकते हैं, बाकी जो इस पूरे कॉलम में वैल्यूज हैं ये क्रॉस आउट कर सकते हैं. क्यों? मतलब वैल्यूज क्रॉस आउट नहीं हो रही है, वी आर जस्ट एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटीज कि अब O9 और किसी को नहीं मिलेगा. ठीक है, A C D किसी को O9 नहीं मिलने वाला है. क्लियर? सिमिलरली एलिस में भी आपका 10 दिख रहा है, सो ये 10 भी क्या हो जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट जो 10 है वो एलिस को एलोकेट हो जाएगा. ठीक है, तो अब एक काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 10 है, तो इस कॉलम में जितनी भी बाकी सारी वैल्यूज है इसको क्या कर दो आप, क्रॉस आउट कर दो. राइट, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड, objects O1, O2 and O3. Objects O1, O2, O3 were given to थ्री डिफरेंट पीपल. सो O1, O2, O3 तीन डिफरेंट लोगों को मिला है. ठीक है, किसी एक को O1 मिला होगा, किसी दूसरे पर्सन को O2 मिला होगा, किसी तीसरे पर्सन को O3 मिला होगा. तो ठीक है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो डन. ऑब्जेक्ट्स O1 एंड O8 वर गिवन टू डिफरेंट पीपल. सिंपल पॉइंट है. अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने सेकंड वाला यूज नहीं करा है अभी, बट दिस मीनिंग इज वेरी क्लियर. O1 एंड O8 वर गिवन टू टू डिफरेंट पीपल. ठीक है, दो अलग अलग लोगों को O1 और O8 मिला होगा. So this point is also done. Then the fourth point, three people value their own bundles at 16. Now this is important to this side. Three people out of these five value their own bundles at 16. तो तीन लोगों का जो सेल्फ वैल्यूएशन वाला नंबर है वो कितना है, 16. नो वन वैल्यूज हर और हिज ओन बंडल एट अ नंबर हायर देन 16. तो बाकी के जो दो लोग होंगे, 16 तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 16 के तीन ही लोग हैं, 16 से ऊपर भी नहीं कर सकते. सो दो बाकी जो लोग हैं उनका जो सेल्फ वैल्यूएशन होगा अपने बंडल का वो कितना होगा, 16 से लेस. अब वो 16 से लेस कितना होगा वो मुझे नहीं पता, बट इट हैज टू बी डेफिनेटली लेस देन 16. सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट, तीन लोग का 16 आना है. Next, Disha values her own bundle at an odd number. Now, Disha, her own bundle at an odd number. All others value their own bundles at an even number. तो बाकी लोगों का जो सेल्फ इवेल्युएशन है अपने बंडल का वो क्या है, इवन नंबर है. नाउ सबसे पहले जब आप नोटिस करना स्टार्ट करो इस चीज को, तो 16 मेरा 3 बार आना चाहिए. राइट, 16 मेरा 3 बार आना चाहिए. 16 इज एन इवन नंबर. तो ये जो हमारा ऑड नंबर है डेफिनेटली इसमें 16 नहीं आने वाला है. सो यहाँ पे 16 नहीं आएगा, ये गारंटीड है. ठीक है, तो 16 हमारा जहां पे भी इवन है वहीं पे आ सकता है. तो चार इवन में से तीन इवन नंबर आपका 16 बनने वाला है और एक इवन नंबर आपका लेस देन 16 बनने वाला है. Then the sixth point, some people who value their own bundles less than 16 envy some other people who value their own bundle at 16. Now this is the most important point. Perhaps इसको हम बार बार यूज करके सॉल्व कर रहे होंगे. ये क्या बोल रहा है, देखो तीन लोग थे जिनका खुद के बंडल का वैल्यूएशन कितना था, 16 ईच था, और बाकी के दो लोगों का कितना है, 16 से लेस है. ये कह रहा है सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल्स लेस देन 16. इन दोनों की बात कर रहा है, और दोनों की बात नहीं कर रहा है, सम पीपल आउट ऑफ इट. अब दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बट कोई ना कोई तो होगा. सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल्स लेस देन 16 एनवी सम अदर पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16. तो ये जो है, इनमें से अगर कोई भी एनवी कर रहा है तो किसको करेगा, पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16. तो इन तीनों में से ही किसी को एनवी आप कर सकते हो, मल्टीपल लोगों को भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी, बट लेस देन 16 वाले हमेशा एग्जैक्टली 16 वालों को ही एनवी करेंगे. नो वन एल्स एनवीज अदर्स, और कोई आपका कभी भी एनवी दूसरे को नहीं करेगा. और कोई का मतलब क्या पे है, हमने ये बोल दिया कि ये लेस देन 16 वाले हमेशा 16 वाले को ही एनवी कर रहे हैं, तो कौन नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी भी ये 16 वाले आपस में एक दूसरे को एनवी नहीं कर सकते. सेल्फ वैल्यूएशन तो चलो बराबर है, बट ऐसा हो सकता था ना कि मान लो ये 16 है, इसका खुद का वैल्यूएशन इसका 16 आया, बट ये इस वाले पर्सन का वैल्यूएशन 18 कर रहा है,
सो ऐसा सिनारियो आपका अराइज नहीं होना चाहिए। दो 16 वाले एक दूसरे को कभी भी एनवी नहीं करेंगे, इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। सिर्फ हमेशा लेस देन 16 वाला एग्जैक्टली 16 वाले को क्या करेगा, एनवी करेगा। नो वन एल्स एनवीज अदर, राइट। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। अब इसके बाद चलते हैं जरा अपने टेबल पे, थोड़ा हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ अमर के लिए देखो अभी एक भी नंबर आपको नहीं पता है। बैरेट के लिए और रिलीज के लिए एटलीस्ट वी हैव सम काइंड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स। जैसे बैरेट के लिए हमें टोटल नंबर को क्या बनाना है, इवन बनाना है। अब इवन नंबर दो नंबर के एडिशन से कैसे बनता है, या तो दोनों इवन हो या तो आपका दोनों नंबर ऑड हो। नाउ इस पूरे रो में आपका एक नंबर जो सेलेक्ट हो चुका है वो इवन है ना, तो दूसरा नंबर आपको इवन ही लेना पड़ेगा। अब इस रो में अगर आप नोटिस करो, odd number odd number odd number odd number odd number odd number and these two are actually even numbers, but again the point is 8 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 8 सेल्फ वैल्यूएशन आपका मैक्स टू मैक्स कितना है, 16 है, तो यहां से 8 नहीं आ सकता, तो इसको 8 नहीं मिला होगा। तो बैरेट को सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी अगर आपको ओवरऑल इवन बनाना है, दैट इज 6। एंड विद दिस 6 बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पहले तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को क्रॉस आउट कर ले, मतलब और किसी पर्सन को बाकी चार में से कभी भी O7 नहीं मिला होगा, एक तो ये पार्ट डिसाइड हो जाएगा। नाउ एक पार्ट ये भी हो गया बिकॉज बैरेट का अब क्या है 6 और 10, सो ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसको 16 वैल्यू मिली है, उसका सेल्फ वैल्यूएशन 16 था। ऑल्सो बैरेट के केस में बिकॉज आपने दोनों नंबर फिगर आउट कर लिए हैं, तो अब बैरेट को और कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं मिलेगा, सो इधर भी हम सब क्या कर सकते हैं, क्रॉस आउट लगा सकते हैं, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इन दिस। नेक्स्ट एलीज के केस में चेक करें। एलिस के केस में भी आपका दो इवन या दो ऑड आना चाहिए था, एक नंबर इवन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो दूसरा नंबर भी इवन ही आना पड़ेगा। अब 10 के साथ क्या आ सकता है इवन नंबर, जैसे नोटिस करो यहाँ पे 6 है 8 है, इवन नंबर्स काउंट कर रहे हैं 6 8 6, तो तीन ही हमारे पास इवन नंबर है, बट 8 सेलेक्ट नहीं हो सकता फॉर द सेम रीजन, वही जैसे यहाँ पे 10 एंड 8 नहीं हुआ था। अगर 10 के साथ यहाँ पे 8 हुआ तो 18 हो जाएगा, बट 16 ही हमारा क्या है, मैक्स है, सो यहाँ से 8 कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा। सो अब अगर यहाँ से 8 सेलेक्ट नहीं होगा तो 6 ही सेलेक्ट हो सकता है। अब कौन सा 6 सेलेक्ट होगा, वी डोंट नो दैट पार्ट, बट एटलीस्ट वी आर श्योर कि इसका 16 तो आने ही वाला है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, अब मुझे ये पता है कि अमर एंड चार्ल्स में से कोई एक पर्सन और है जिसका सेल्फ वैल्यूएशन कितना है, 16 है, बिकॉज वी नीडेड 3 पीपल जिनका 16 आने वाला है ना। अब आपको ना इसमें बेसिक असम्पशन से चलना पड़ेगा। सपोज सपोज अमर इज वन ऑफ द पर्सन, मतलब जिसका क्या है 16 है, तीसरा पर्सन सपोज ये है। अगर अमर का 16 हुआ, अब मुझे नहीं पता कि कौन से कॉम्बिनेशन से बनेगा, मे बी 9+7 से बन सकता है, 9+7 से, बट लेट्स से अगर अमर का सपोज 16 है, तो प्रॉब्लम ये है कि बैरेट इज ऑल्सो अ पर्सन जिसका 16 है सेल्फ वैल्यूएशन, लेकिन अगर आप नोटिस करो अमर जो है वो बैरेट के बंडल का वैल्यूएशन क्या करेगा, 8+9, बिकॉज बैरेट को O7 और O9 मिल रखा है, तो अमर जो है बैरेट के बंडल का जो वैल्यूएशन करेगा वो 8+9 करेगा, दैट इज 17। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, बिकॉज आप अज्यूम करके चल रहे हो लेट्स से अमर 16 वाला पर्सन है, तो अमर बैरेट वाले का जो कि दूसरा 16 वाला पर्सन है उसका वैल्यूएशन 17 करेगा। बट इन दिस केस बिकॉज इसका वैल्यूएशन बैरेट के वैल्यूएशन से अमर का जो खुद का वैल्यूएशन है वो अमर जो बैरेट के बंडल का वैल्यूएशन करता है उससे कम है, तो अमर को बैरेट को लाइक एनवी करना पड़ेगा। बट यही तो इसने यहाँ पे मना करा था कि कोई भी 16 वाले दो लोग एक दूसरे को एनवी नहीं कर सकते। So that actually means कि अमर is not one of those person जिसका क्या है 16 है, right? I'll repeat this part again. अमर का खुद का वैल्यूएशन अगर मैंने अज्यूम करा कि 16 है, बिकॉज एक 16 वाला पर्सन चाहिए था, अगर उसका खुद का वैल्यूएशन 16 है तो फिर वो बैरेट को कभी भी एनवी नहीं कर सकता, बिकॉज बैरेट इज ऑल्सो अ पर्सन ऑफ 16, ये उसने स्टार्टिंग में समझा था। बट अमर अगर बैरेट का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, अमर बैरेट के जो कॉम्बिनेशन है O7 और O9, उनका वैल्यूएशन 8 एंड 9 करता है, दैट इज 17, तो ज्यादा करता है ना, तो उसका तो खुद का कम है 16 है, तो उसका हमेशा एनवी उसको करेगा। बट ये अलाउड नहीं है, एक 16 वाला पर्सन दूसरे 16 वाले पर्सन को कभी भी एनवी नहीं करेगा।
सिर्फ आपका एनवी कौन कर सकता है? लेस देन 16 वाला, एग्जैक्टली 16 वाले को। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि अब हमारे पास वो पर्सन है जिसका तीसरा आपका 16 है। सो वो किसका होगा? आपका चार्ल्स का होगा। तो इसका आपका 16 नहीं बनना चाहिए। नाउ बिकॉज अब इसका कुछ इंप्लीकेशन भी होना चाहिए। बिकॉज इसका हमारा 16 बनना चाहिए, तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे दो इवन नंबर या दो ऑड नंबर, तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे दो ऑड नंबर आपको मिलेंगे ही। एक ही आपका ऑड नंबर अब बचा हुआ है, दैट इज 3। सो ये डेफिनेटली नहीं होगा। सो ये 16 कैसे बन रहा होगा? दो इवन नंबर से। एंड इफ यू लुक एट द नंबर्स 888, 6, 4, 888, तो आपको सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखेगी चार्ल्स का 16 बनाने के लिए, दैट इज 8 एंड 8। चार्ल्स का हमारा 8 एंड 8 बनेगा। ऑल्सो नाउ आई यूज दीज 2 पॉइंट्स, 2 एंड 3। चार्ल्स का दो बार 8 आना चाहिए, मतलब बाकी वैल्यूज इसमें से आप वैसे भी क्रॉस आउट कर सकते हो, है ना। तो चार्ल्स में 6 नहीं हो सकता, चार्ल्स में 4 नहीं हो सकता। तो ये 3 8 और ये 4 8। बट प्रॉब्लम ये थी कि सेकंड में उसने एक कंडीशन बोल रखा था, ऑब्जेक्ट्स O1, O2 एंड O3 वर गिवन टू थ्री डिफरेंट पीपल। तो O1, O2 एंड O3 तीनों अलग अलग लोग को मिलेंगे। तो चार्ल्स को जो डबल 8 चाहिए, वो दो 8 यहां से नहीं आ सकते। मैक्स टू मैक्स यहां से एक 8 आना पड़ेगा। तो एक और 8 कहीं होना चाहिए, तो वो 8 यहाँ पे है। बात यह है कि तुम इस 8 को अगर नहीं लिए, तो दोनों 8 यहाँ पे आने पड़ेंगे। इसलिए एटलीस्ट हम ये पार्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि ये वाला जो 8 है वो आएगा ही आएगा। तो इसके साथ ये भी क्रॉस लग गया, इधर भी क्रॉस लग गया और इधर भी क्रॉस लग गया। अब इन तीन 8 में से कौन सा 8 होगा ये सोचना है। पहला थर्ड पॉइंट आपको ये हेल्प कर देगा, बिकॉज O1 एंड O8 कभी भी सेम पर्सन को नहीं मिलेगा, वो दो डिफरेंट लोग को मिलना चाहिए। तो इस वाले में, चार्ल्स वाले में जो 8 है वो O1 वाला नहीं हो सकता, बिकॉज फिर O1 एंड O8 सेम पर्सन को मिला है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। तो हम ये यहां से क्रॉस आउट कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। देन वी आर एक्चुअली लेफ्ट विथ चार्ल्स के लिए O2 एंड O3 में से सेलेक्ट करना है कौन सा 8 आने वाला है। तो अब ट्राई करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो अगर तुमने फिर वो एनवी वाला पार्ट आप यूज कर सकते हो। मान लो तुमने चार्ल्स का क्या करा, सपोज ये वाला ये यूज किया O2 वाला। अब प्रॉब्लम ये है, समझना, प्रॉब्लम ये है कि चार्ल्स का ये O2 एंड O8 हो जाएगा। एंड चार्ल्स वुड बी दैट पर्सन जिसका वैल्यूएशन खुद का कितना है? 16। बट इफ यू नोटिस, बैरेट जो चार्ल्स के बंडल का वैल्यूएशन करेगा, बिकॉज ये O2 एंड O8 है, तो बैरेट चार्ल्स के बंडल का वैल्यूएशन कितना करेगा? 9 प्लस 8, 17 करेगा। और बैरेट का खुद के बंडल का वैल्यूएशन तो 16 ही है, इज दैट पर्सन जिसका 16 है। तो खुद का 16 है, और अगर हम चार्ल्स को ये वाला 8 देते हैं, तो बैरेट चार्ल्स का वैल्यूएशन कितना करेगा? 9 प्लस 8, 17। तो दूसरे का ज्यादा करेगा ना। सो दैट सिंपली मीन्स बैरेट को चार्ल्स को एनवी करना पड़ेगा। बट वी हैव ऑलरेडी इटरेटेड द पॉइंट कि 16 वाला कभी दूसरे 16 वाले को क्या नहीं कर सकता है? एनवी नहीं कर सकता है। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि चार्ल्स में ये वाला 8 नहीं आएगा। दिस 8, दैट इज O3 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स। सो ये वाला 8 अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड साथ में ये क्रॉस आउट हो जाएगा, बिकॉज ये O3 चार्ल्स को मिल गया, तो बाकी किसी को O3 नहीं मिलेगा। क्लियर है? नाउ दिस पार्ट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। नाउ अब नोटिस करो, अब आपके पास क्या बचा हुआ है? अमर का बचा हुआ है, दिशा का बचा हुआ है, एंड एलीस का बचा हुआ है। एक कौन सा आपका 6 सेलेक्ट होने वाला है। अच्छा, और क्या चीजें हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं? लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दैट, राइट। जैसे अमर के लिए अगर मैं नोटिस करूं एक चीज, अमर के लिए, अमर का हमारा नंबर ओवरऑल क्या बनना चाहिए? इवन। तो दो इवन या दो ऑड नंबर आने चाहिए। अमर के लिए नोटिस करो, ये 4 इवन है, बाकी फिर 9, 3, 7, 3 ये सारे नंबर ऑड है। सो हम एटलीस्ट एक पार्ट की गारंटी ले सकते हैं कि अमर के केस में ये 4 तो नहीं आने वाला है, बिकॉज ओवरऑल इवन बनाना है। एक इवन नंबर अगर ले लिए, तो दूसरा नंबर इवन इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। सो दैट मीन्स अमर का ये 4 वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं होगा। सो उसका दो ऑड नंबर से बनने वाला है। क्या ये लॉजिक और कहीं भी एप्लीकेबल है? लेट्स चेक फॉर दिशा। दिशा का ऑड नंबर बनना चाहिए। ऑड का मतलब क्या हुआ? एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर आना पड़ेगा, क्योंकि दो इवन या दो ऑड दोनों सिनेरियो में आपका नंबर इवन बन जाएगा। तो एक इवन और एक ऑड आना चाहिए। अब इस वाले में अगर आप नोटिस करो करंटली, तो दो इवन नंबर है, 88 और 5, 5 एंड 3 है। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट होगा, और
इन तीनों में से ऑब्वियसली आपका कोई एक नंबर सेलेक्ट होके आएगा, राइट। अब यहां से यहां पे आके एक स्टेलमेट आ गया अपना फिलहाल। तो अब यहां से हमें थोड़ा और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, या परहैप्स हम क्या करना चाहेंगे, सम काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल टू दिस, राइट। थोड़ा हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करने में इंटरेस्टेड हैं। नाउ कहाँ से हिट एंड ट्रायल करना स्टार्ट करें, लेट्स फोकस ऑन एलीस नाउ। एलीस में आपका कितना बन रखा है, एक 10 आ रखा है, और हमें पता है कि इसका 16 बनना है। सो वी ऑलरेडी नो कि इसका 6 एंड 6 में से कुछ आएगा, राइट। इसका हमें ऑलरेडी पता है कि इसका 6 एंड 6 में से कुछ आएगा। अच्छा, एक बार हम इसमें ये भी कर सकते हैं, बिकॉज 6 में से कुछ आएगा तभी 16 बनेगा। सो हम यहाँ से ये 5 क्रॉस आउट कर दें, और यहाँ से भी ये 5 क्रॉस आउट कर देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। अजम्पशन क्या, एलिस में आइदर दिस 6 विल बी देयर, या मतलब O1 या तो एलिस को मिलेगा, या तो एलिस को O5 मिलेगा। सो लेट्स चेक बोथ द केसेस। अब बिकॉज आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज एन इरेजर, तो मैं इसी डायग्राम में करता हूँ, जस्ट चेंज द कलर्स। सो लेट्स से एलिस को ये वाला 6 मिला। अब देखो इससे होगा क्या, सपोज तुमने एलिस को ये वाला 6 दिया, तो इधर अब ये बचे में क्रॉस लग जाएगा, बिकॉज ये और ये अब एलिस का पता चल चुका है, तो इधर ये वाला 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब इसके साथ और होने क्या वाला है, अब इसमें जैसे अब देखो, दिशा के केस में अब हमने बोला था ना, इन दोनों में से कोई एक 8 तो सेलेक्ट होने ही वाला था, बिकॉज ऑड बनना था, इवन एंड ऑड। अब बिकॉज यहाँ पे अब ये वाला 8 एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ये हमने अजम्पशन ले लिया, सो दैट मीन्स कि ये वाला 8 सेलेक्ट होगा ही होगा, राइट। दैट सिंपली मीन्स कि ये वाला 8 सेलेक्ट अब होगा ही होगा। तो अब नोटिस करो, अब ये आपने सेलेक्ट कर लिया, यहां से आप 9 भी क्रॉस आउट कर दोगे, बिकॉज इस कॉलम में 8 सेलेक्ट हो चुका है। अब नोटिस करो, आपके पास ये सेट ऑफ तीन तीन नंबर दोनों में बचे हुए हैं, किसमें, अमर में और दिशा में। नाउ आप एनवी वाला लॉजिक यूज करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये जो दोनों पर्सन है, ये दोनों ही बिलो 16 वाले हैं। तो ऐसा कुछ इनमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, सच दैट कोई एक पर्सन दूसरे को क्या करे, एनवी। बिकॉज बिलो 16 वाला हमेशा 16 वाले को एनवी करेगा, बिलो 16 वाला कभी भी 16 वाले को एनवी नहीं कर सकता ना। अमर का जैसे सेल्फ वैल्यूएशन अगर देखो, तो क्या हो सकता है, आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जैसे क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, 3 and 7 हो सकता है परहैप्स, या क्या हो सकता है 3 and 3 6 हो सकता है। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज जब हम अमर की बात करते हैं। उसको कुछ भी कॉम्बिनेशन आप दोगे, तो या तो 3 + 3 से 6 बनेगा, या 3 + 7 से क्या बनेगा, 10 बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट जब दिशा की बात करते हो, तो दिशा में आपका वैल्यूएशन क्या बनेगा। अब नोटिस करना, अमर, हमें दिशा के खुद की वैल्यूएशन से अभी फिलहाल मतलब नहीं है, हम अमर के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। तो अमर का खुद का वैल्यूएशन या तो 6 है या तो 10 है। जब अमर दिशा का वैल्यूएशन करेगा, दिशा के बंडल का वैल्यूएशन करेगा, तो क्या वैल्यूज आएंगे। तो तुम एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, कि दिशा का ये 8, हमने इस पहली वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली 8 लिया। तो अमर जब दिशा का वैल्यूएशन करेगा, O2 बिकॉज दिशा के पास होगा, तो 9 आ जाएगा, बिकॉज अमर O2 का वैल्यूएशन 9 करता है। अब इसके साथ या तो ये O4 आएगा, तो 9 + 3 हो जाएगा। अगर 5 की जगह ये वाला 5 आया, तो 7 हो जाएगा, 9 + 7। अगर ये वाला 3 आया, तो 3 ही रहेगा। इन आइदर ऑफ द थ्री केसेस अगर आप नोटिस करो, वैल्यूएशन कितनी हो गई, 12, 16 और यहाँ पे 12। तो तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, चाहे अमर का और दिशा का, अमर का जो वैल्यू है दैट इज 6 and 10, वो हमेशा ही इन तीनों नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। बिकॉज अमर का खुद का वैल्यूएशन हम गारंटी से बोल सकते हैं कि दिशा के नंबर से हमेशा दिशा के जो मंडल है उसके वैल्यूएशन से, अमर जो दिशा का वैल्यूएशन करता है उससे हमेशा छोटा होगा अमर का खुद का वैल्यूएशन। हेंस अमर शुड एनवी दिशा, बट ये चीज अलाउड नहीं है। बिलो 16 वाला कभी भी बिलो 16 वाले को एनवी नहीं कर सकता, एंड बिकॉज वो एनवी नहीं कर सकता, हेंस वी कैन से कि जो हमारा इनिशियल अजम्पशन था, जितना हमने ब्लू वाले पार्ट में करा, वो सारा कुछ गलत है। सो दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। तो बिकॉज ये अजम्पशन गलत हो गया, फिर तो हमारे लिए अच्छा हो गया, बिकॉज हमारी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कुछ अब फिक्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले, अब ये 6 आप एलिमिनेट कर दोगे। नाउ आई स्विच बैक टू माय रेड।
सो अब ये वाली पॉसिबिलिटी हम एलिमिनेट कर दोगे, ये 6 नहीं हो सकता है इसमें, तो ये क्रॉस आउट हो गया। तो इसमें कौन सा 6 सेलेक्ट हो गया, दिस वन। एंड इसी के साथ, बिकॉज अब इस कॉलम में O1 किसी को तो मिलेगा ना, 4 लोग को नहीं मिल रहा है, ये गारंटेड है। सो ये वाला 8 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब बिकॉज ये 8 सेलेक्ट हुआ है, तो ये 8 नहीं हो सकता, बिकॉज दो इवन नंबर नहीं हो सकते, ऑड बनाना है। तो ये 8 भी यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। एंड बिकॉज यहाँ 8 एलिमिनेट हो जाएगा, तो इस कॉलम में भी 4 क्रॉस आ गए, तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 9 आ जाएगा। राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑल्सो बिकॉज यहां 6 आ जाएगा, तो इसमें और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। परफेक्ट। नाउ फाइनली, अब इसमें बस थोड़ा सा और आपको चेक करना पड़ेगा एंड यू विल बी डन। अमर के लिए आप नोटिस करो तो आइदर वे दोनों जगह 3 है। दिशा के लिए आपका नंबर क्या है, 5 एंड 3 है। तो अब क्या है, आपकी पॉसिबिलिटी तो है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे O4 सेलेक्ट हुआ, राइट, तो ये क्रॉस लग जाएगा, तो इसमें 3 आ जाएगा। तो आप दोनों पॉसिबिलिटी चेक करके देख लो, 3 एंड अगर यहाँ 3 दिया वो, या फिर अगर यहाँ 3 दिया तो यहाँ पे 5 आया वो। इन दोनों का किसी भी ऑर्डर में एक दूसरे का एनवी बस नहीं आना चाहिए। तो जिस भी केस में एनवी आपका नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। सो लेट्स अज्यूम, मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने 3 सेलेक्ट करा, राइट। अब ये 3 सेलेक्ट करा तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, तो ये इसको मिल जाएगी 3। तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब आपको दोनों साइड से बस इसको चेक कर लेना चाहिए। अमर का खुद का वैल्यूएशन कितना है, 12। अमर के रिस्पेक्ट में भी पहले चेक कर रहे हैं। अमर का खुद का वैल्यूएशन कितना है, 12। अब अमर दिशा का जब वैल्यू करेगा तो कितना करेगा, दिशा का, बिकॉज O1 एंड O6 है, राइट। सो 4 प्लस 3 7 करेगा। 12 हमारा 7 से छोटा तो नहीं है, तो अमर दिशा को एनवी नहीं करेगा। लेट्स चेक दी अदर वे राउंड। दिशा का खुद का वैल्यूएशन कितना है, 8 प्लस 3 11। दिशा जो इनका करेगा, किसका, अमर का वैल्यूएशन करेगा, वो कितना करेगा, 8 प्लस 5। 8 प्लस 5, बिकॉज 9 3 है ना, तो उसके नीचे देख लो उस कॉलम में, दिशा अमर का क्या करेगा, 8 प्लस 5 13 करेगा। देयर अराइजेज अ प्रॉब्लम, बिकॉज खुद का वैल्यूएशन तो वो 11 कर रहा था, और वो अमर का वैल्यूएशन कितना कर रहा है, 13, इससे छोटा है। इसका मतलब एनवी करेगा, बट कर नहीं सकता, बिकॉज बिलो 16 वाला, बिलो 16 वाले को एनवी कभी नहीं कर सकता। बस वेर डन। बिकॉज ये सारी पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो गई, तो इसको मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये 3 इसको यहाँ पे नहीं मिला होगा, ये वाला 3 इसको एक्चुअली में मिला होगा, एंड दैट इज द फाइनल सिचुएशन, राइट। अब इसके बाद हमें कुछ चेक नहीं करना है, इसको डेफिनेटली फिर यहाँ पे क्या मिला होगा, 3 मिला होगा। बिकॉज इसको 3 मिला है तो ये क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब ये भी इसको नहीं मिला होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको क्या मिला होगा, 5। एंड यू कैन नाउ डेफिनेटली गो एड एंड चेक, कोई भी पर्सन ऐसा किसी को एनवी नहीं कर रहा है, सो दैट देर इज एनी कॉन्ट्रडिक्शन with respect to this sixth point, right? So that is a final distribution. Let's go ahead and solve all the problems, right? So very interesting problem, a little difficult because thoda analytical है ज़्यादा. Let's check. So first question क्या है, what best can be said about object 8? तो object 8 किसको मिला है, चार्ल्स को मिला है, right? Object 8 was given to Charles, so O8 was given to Charles, that is D option. Who among the following envies someone else? राइट, इसमें आप चेक करना पड़ेगा कौन किसको एनवी करता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अमर का अगर हम देखें, तो अमर किसी को, बाय द वे, एनवी समवन एल्स कौन होगा, हमेशा बिलो 16 वाला ही होगा ना। सो बस हम ये चेक कर सकते हैं कि अमर एंड दिशा में से कौन किसको एनवी कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेम बोल सकते हैं। अमर एंड दिशा में, दिशा ऑप्शन में है नहीं, सो इट हैज टू बी अमर, बिकॉज बिलो 16 वाला ही सिर्फ क्या कर सकता है, 16 वालों को एनवी करेगा। सो अमर इज वन ऑफ दोस पर्सन। ठीक है, तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, दिशा बिकॉज ऑप्शन में नहीं है। What is Amar's value for his own bundle? Amar's value for his own bundle would be 9 plus 3, that is 12. Object O4 was given to, object O4 was given to Disha, that is first option. Object O5 was given to, O5 was given to Elise, B option. What best can be said about the distribution of object O1? तो O1 किसको मिला है, आपका दिशा को मिला है, पूरा परफेक्टली आपका यूनिक है। सो O1 किसको मिला, आपका दिशा को मिला, सो दैट इज द डी ऑप्शन, right? So the questions were pretty straightforward, but not the set, definitely.
Right. So I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.